morning, students. Today we will discuss the chapter Life on the Earth. This is the important chapter. बच्चों ने अब तक पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा, और जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, a narrow contact zone where the lithosphere, atmosphere, hydrosphere meet, तो उसको कहते हैं बायोस्फीयर. लाइफ ऑन द अर्थ. लाइफ का मतलब है बायोस्फीयर्स. आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में कुछ तो इस प्रकार की टर्म आई होंगी. एक्चुअली ये बायोलॉजी का ही चैप्टर है. By now you might have realized that all units of this book have acquainted you with the three major realms of the environment, that is the lithosphere, the atmosphere and hydrosphere. You know that living organisms on the earth constituting the biosphere interact with the other environmental realms. The biosphere includes the living components of the earth. यानी बायोस्फीयर का मतलब है जहाँ पर लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इस प्रकार से. तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम. The biosphere includes the all living components of the earth. It consists of all plants and animals, including all the microorganisms that live on the planet Earth and their interaction with the surrounding environment. Most of the organisms exist on the lithosphere. Most of the organisms exist on the lithosphere and or the hydrosphere as well as the atmosphere. There are also many organisms. That move freely from one into the other. कुछ ऐसे भी हैं जैसे जो पानी में रहते हैं और अर्थ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं. तो इस प्रकार से इस प्रकार के the biosphere and the components are very significant elements of the environment. These elements interact with the other components of the natural landscape such as the land, water and the soil. ये इसमें इंटरेक्शन करते हैं. लैंड, वाटर और सोइल का आपस में किस प्रकार से इन तीनों का क्या रिलेशन है. They are also influenced by the atmospheric elements such as the temperature, rainfall, moisture and sunlight. The interaction of the biosphere with the land, air and the water are important to the growth, development and evolution of the organisms. तो कोई भी चीज़ बच्चों उसके अंदर अगर हम बात करते हैं, लाइफ की बात करते हैं, तो 5 एलिमेंट पाए जाते हैं. तो लाइफ ऑन द अर्थ इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर. सभी जगह जो है किसी न किसी फॉर्म में जो है वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी टू द सेवरल किलोमीटर इन द एयर, फ्रॉम फ्रीजिंग वाटर टू ड्राई वैलीज, फ्रॉम अंडर द सी टू द अंडरग्राउंड वाटर लेइंग बिलो द अर्थ सरफेस. तो सभी जगह कहीं न कहीं किसी फॉर्म में जो है वो लाइफ पाई जाती है. ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं. एक सब्जेक्ट होता है इकोलॉजी. ये बायोलॉजी का ही पार्ट. इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच इज deal with the living and non-living. You have been reading about the ecological and environmental problems in the newspapers and magazines. Have you ever thought that what is ecology? The environment, as you know, is made up of the abiotic and biotic components. ठीक है, ये बायोटिक लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में जो एक रिलेशनशिप है उसको बोलते हैं इकोलॉजी. It would be interesting to understand how the diversity of life form is maintained to bring a kind of balance. बीच में बैलेंस किस प्रकार से पाया जाता है, कभी इकोलॉजिकल बैलेंस. This balance is maintained in a particular proportion so that a healthy interaction between the biotic and biotic components goes on. अब उनके अंदर एक हेल्दी इंटरेक्शन चलता है. बायोटिक लैंड से लैंड है, एयर है, वाटर है, तो इनके अंदर आपस में एक इंटरेक्शन होता है. अगर कोई भी इम्बैलेंस हो जाता है तो उसका फिर जो बायोटिक जीवन है उसके ऊपर है, बायोटिक के ऊपर जो है वो एडवर्स इम्पैक्ट करता है. जैसे कहते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो जाता है, और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम. The interaction of a particular group of the organism with abiotic factors within a particular habitat resulting in clearly defined energy flow and material cycles on land, water and air and called the ecological system होता है ना. इसे फ्लो करता है, एनर्जी के फ्लो करता है, वाटर के रूप में करता है, और भी उसके बाद फिर वो लैंड में जाता है, उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं. इस प्रकार से एक एनर्जी का साइकिल बन जाता है. हम जो खाते पीते वो कहाँ से हैं, हमारा जो सराउंडिंग है उससे, चाहे वो प्लांट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, जो भी है कौन लेते हैं. और वेजिटेबल कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एयर से लेते हैं, वाटर से लेते हैं. इस प्रकार से
The term ecology is derived from the Greek words the okos means the house, combined with the word logi, meaning the science of the study of. Literally, ecology is the study of the earth as a household of the plants, human beings, animals, and microorganisms. तो ecology हो गया आपकी. They all live together as interdependent components. ये आपस में interdependent करते हैं. A German zoologist Ernst Haeckel, who used the term the ecology in the 1869, became the first person to use the term ecology, the study of the interaction science of the ecology. Hence, the ecology can be defined as the scientific study of the interaction of organisms with their the physical environment and with each others. यानी हमारा जो रिलेशन है लिविंग और नॉन लिविंग का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ किस प्रकार का रिलेशन करता है, इस प्रकार से इकोलॉजी से स्टडी करता है. तो देखते हैं. हैबिटेट इन द इकोलॉजिकल सेंस इज द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स. हैबिटेशन मतलब जैसे हम कहाँ पर रहते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट में रहते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं, तो उनके लिए एक हैबिटेट, उनके लिए एक आवास है. हम कहाँ रह सकते हैं, बाहर नहीं रह सकते. कोई भी एनिमल जो वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहेगा उसका एक अपना एक एनवायरनमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हैबिटेट. हैबिटेट इज द इकोलॉजिकल सेंस इज द टोटलिटी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द जनरल एनवायरनमेंट. उसके लिए एक सामान्य एनवायरनमेंट किस प्रकार का सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज नोन एज द इकोसिस्टम. एक सिस्टम होता है जैसे पूरी अर्थ का एक इकोसिस्टम है, उसके ऊपर वाटर बॉडीज है, लैंड है, एयर, इस प्रकार से. उसके बाद फिर हम बात करते हैं कोई भी एक एरिया, उसका एक अलग से इकोसिस्टम बन जाता है, यानी एक बैलेंस होता है उसके बीच. All these components in the ecosystem are interrelated and interact with the each others. Different types of the ecosystem exist with the varying ranges of the environmental conditions, where the various plants and animals species have got adapted through evolutions. This phenomena is known as the ecological rotation. हम जहाँ भी रहते हैं उसको अडोप्ट कर लेते हैं. फिनोमेना है जिसको इकोलॉजी उस एनवायरनमेंट को अडोप्ट कर लेता है जिसमें हम रहते हैं. उसी प्रकार से हमारा जो है वो सिस्टम चलता है. हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम आर टू टाइप्स. एक होता है टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, यानी जो अर्थ सरफेस के ऊपर है वहाँ पर किस प्रकार का, जैसे हम बात करते हैं फॉरेस्ट है. एक होता है एक्वेटिक, होता है अभी सी के अंदर. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन बी फर्दर डिफाइंड द बायोम्स. उसके अलग बायोम बनाते हैं, जैसे भी बात पर देखते हैं भी जहाँ जहाँ लैंड वहाँ से वो अलग टाइप का एनवायरमेंट. इक्वेटर के पास अलग है, ट्रॉपिकल में अलग है, सब ट्रॉपिकल में अलग है, और पोल्स पर अलग है. A biome is a plant and animal communities that covers a large geographical area. एक बायोम को बोलते हैं एक जिसमें तक जीव रहते हैं उसका एक लार्ज geographical area होता है. The boundaries of the different biomes on the land are determined mainly by the climate. वहाँ कहाँ पर किस प्रकार का टेम्परेचर पाया जाता है, खासकर से क्लाइमेट, उसके अनुसार हमने इसको डिटरमाइन किया है. इसमें आपको बताया था अभी इक्वेटोरियल लाइफ है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, पोल्स है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के वहाँ पर किस प्रकार की जो है क्लाइमेटिक कंडीशन है. Therefore, biome can be defined as the total assembles of the plants and animal species interacting within the specific conditions. जैसे कोई भी बात करते हैं उस एरियाज में वो आपस में किस प्रकार से असेंबल प्लांट्स एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, वहाँ पर प्रजातियाँ पाई जाती हैं, वो आपस में एक स्पेसिफिक कंडीशन में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, यानी किस प्रकार का उनका इंटररिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए. These include the rainfall, temperature, humidities and soil condition. तो डिपेंड करता है वहाँ पर रेनफॉल कितनी होती है, उसके अनुसार वहाँ पर ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, और सोइल कंडीशन किस प्रकार. Some of the major biomes of the world are the forest. जैसे बात करते हैं फॉरेस्ट ग्रासलैंड है वहाँ पर, जहाँ एक डेजर्ट एरिया है, एक टुंड्रा बायोम्स. इक्वेटिक इकोसिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज द मैरीन एंड द फ्रेश वाटर. कुछ मैरीन है जैसे भी सी की बात करते हैं, कुछ फ्रेश वाटर जैसे एक रिवर है या कोई लेक है उसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है. दो प्रकार की होगी. मैरीन इकोसिस्टम द ओशियंस, एस्चुरीज एंड कोरल रीफ्स. इस प्रकार से बात करते हैं. ओशियंस जितने भी सागर हैं वहाँ पर. फ्रेश वाटर इकोसिस्टम द लेक्स है, जैसे पोन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, और मार्सेस एंड बॉल्स. इस प्रकार से एक बॉल्स होती है उसके आसपास. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम. The structure of an ecosystem involves a description of the available plant and animal species. हम बात करते हैं भी वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसका किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, उसका फंक्शन क्या है.
इसमें सारा का सारा जो वहाँ पर अवेलेबल प्लांट्स हैं, एनिमल स्पीसीज है, उनका डिस्क्रिप्शन बताता है कि यहाँ पर किस प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, किस प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं और कौन कौन स्पीसीज पाई जाती है, क्यों पाई जाती है। इसको डिटरमाइन करता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में भी जो है टेम्परेचर है, रेनफॉल। From a structural point of view, all ecosystem consist of the abiotic and abiotic factors. Abiotic factors include जैसे abiotic factor बात करते हैं यानी नॉन लिविंग की बात करते हैं, इसमें रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक क्वांटिटीज, सोइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटासियम एक्स्ट्रा, ये सारे के सारे जो है वो नॉन लिविंग, इसको कह सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। इन बायोटिक और बायोटिक का आपस में किस प्रकार से रिलेशन। बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूड द, वहाँ पर भी किस प्रकार के प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड डिकम्पोज। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, एक 9th-10th में आपने पढ़ा होगा प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, रिवर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स। द प्रोड्यूसर इंक्लूड द ऑल द ग्रीन प्लांट्स, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, सूर्य के प्रकाश में देखते हैं, which manufacture their own food through the photosynthesis. The primary consumers include the herbivores, बोलते हैं इसको प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे एनिमल्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी वो प्लांट्स को खाते हैं। हेर्बिवर्स एनिमल लाइक द डियर है, गोट्स है, माइस एंड ऑल द प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स। द कार्निवर्स इंक्लूड ऑल द फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। कार्निवर्स तो जो जैसे जो कोई जानवर उसको खा जाते हैं, छोटे जानवर को बड़े जानवर खा जाते हैं, जैसे लॉइन है तो लॉइन किसको खाएगा, डियर को खाएगा। इस प्रकार से उसके ऊपर डिपेंड करता है, डीर किसको खाता है, घास को खाता है। इस प्रकार से फूड चेन बन जाती है और जब ये फूड चेन आपस में इंटरमाइन हो जाती है उसको बोलते हैं फूड लाइन। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक द स्नैक्स, टाइगर्स एंड लायंस, सर्टेन कार्निवर्स दैट feed also on the carnivores are known as the top carnivores, like the hog and the monkeys and the decomposers are those that feed on the dead, जो मर जाते हैं उसके बाद उसको खा जाता है, कुछ ऐसे भी। फॉर एग्जाम्पल द स्कैनिवर्स लाइक द वल्चर्स एंड क्रोस, इस प्रकार के तो वल्चर्स होते हैं जो डेड एनिमल्स हैं उसको खा जाते हैं ताकि बैलेंस हो जाता है एंड क्रोस। फर्दर ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर बाय द अदर डिकम्पोजिंग एजेंट लाइक द बैक्टीरिया, उसकी वजह से कोई चीज़ डेड हो जाती है तो उसके अंदर बैक्टीरिया हो जाते हैं एंड वेरीज माइक्रोब, उसके अलावा और भी बहुत से स्टिमुलेंट। तो इस प्रकार से एक सिस्टम बना है कि प्राकृतिक सिस्टम बना हुआ, बच्चों कोई चीज़ है उसका एक आपस में फूड चेन बनी है, फूड चेन के बाद भी कुछ चीज़ें जो डेड हो जाती है, डेड होने के बाद कुछ इस प्रकार के पशु पक्षी हैं जो उसको खा जाते हैं या उसके बाद रह जाता है, फिर उसमें जो है फिर ये बैक्टीरियाज बनते हैं, इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो इसमें एक दिया गया है, इसमें देखिए प्राइमरी जो एनर्जी है वो सन है, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सोल एनर्जी आपकी। उसके बाद प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और उसके बाद फिर देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, हेर्बिवर्स जो खा जाते हैं, पत्तों को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का व्यवस्था होती है, ये इस प्रकार से खा जाते हैं इसको। इसमें से कुछ भी डेड रिमेन्स रह जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है इस प्रकार से। ये दो चीज़ों से सोइल इससे लेते हैं, सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है और सन से एनर्जी लेता है, इस प्रकार से दोनों से मिलकर के प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गया और टर्सरी कंज्यूमर्स इन टॉप कार्निवर्स होते हैं, इस प्रकार से। एक होता है बच्चों ऑमनिवर्स, जैसे आदमी है, इंसान जो है वो दोनों चीज़ें शाकाहारी भी है मांसाहारी भी, दोनों को खा जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑमनिवर्स यानी सर्वाहारी मिल जाते हैं इसको सर्वाहारी। The producers are consumed by the primary consumers, whereas the primary consumers are in turn being eaten by the secondary consumers. Further, the secondary consumers are consumed by the tertiary consumers. The decomposers feed on the dead at the each and every level. They change them into various substances such as the nutrients, organic and inorganic salts essential for the soil. तो soil के अंदर डिकम्पोज होता है तो उसके बाद फिर दोबारा फिर जो soil कंप्लीट होती है। Organisms of an ecosystem are linked together through the food chain. Food chain को मैं बता दूँ, food chain इस प्रकार से food chain दिखाइए। For example, a plant eating beetle feeding on a paddy stalk is eaten by a frog, which is in the turn eaten by the snake, which is then consumed by the hog. इस प्रकार से the sequence of the eating and being eaten and the resultant the transfer of energy from one level to the another is known as the food chain, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल जाते हैं, उसको बोलते हैं फूड चेन होगी। और कई बार
क्या होता है कि समझ आता है कि कौन किसको खा रहा है। जब ये आपस में फूड चेन, सारी की सारी फूड चेन आपस में इंटरमाइंड हो जाती है, उसको बोलते हैं फूड वेब। The transfer of energy that occur during the process of the food chain from one level to the another is known as the flow of energy। कितनी एनर्जी जाती है, जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं या कोई भी है उसको खाता है, तो उससे कितनी एनर्जी जो है उसके अंदर मिल जाती है। तो इसमें एक फार्मूला लगाते हैं 5 to 20%, आमतौर पर जो 10%, यानी एक ट्रॉपिकल लेवल से इसके अंदर अदर ट्रॉपिकल लेवल में जाते हैं, उसको बोलते हैं इस प्रकार से ट्रॉपिकल लेवल, उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी। हाउएवर फूड चेन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम द वन अनदर। For example, a mouse feeding on the grain may be eaten by the different secondary consumers, carnivores, and these carnivores may be eaten by the other different tertiary consumers, top carnivores. In such situation, each of the carnivores may consume the more than one type of the prey। भी एक से ज़्यादा खाते हैं, कई बार एक चीज़ नहीं खाते, वो भी बहुत से एनिमल्स को या जानवर को खाते हैं। As a result, the food chain get interlocked with one another. This interlocked connecting the network of the species is known as the food web। Generally, the two types of the food chains are recognized। Grazing food chain होता है, grazing घास में वो चीज़ होती है, and detritus food chains। In a grazing food chain, the first level start with the plants as the producers and ends with the carnivores as the consumers at the last level। With the herbivores, uh, with the herbivores being at the intermediate levels. There is a loss of energy at each level, which may through the respirations, excretion or the decomposition। एक लॉस हो जाता है एनर्जी का, जितनी एनर्जी आप उतनी जा पाते हैं, तो किसी न किसी रूप में वो लॉस हो जाता है। The level involved in a food chain range between 3 to 5 and energy is lost at each level। 3 to 5 जो है वो एनर्जी लॉस हो जाती है। Detritus food chain is based on the autotrophs। Energy captured and initiated by the grazing animals and involves the detritus food chain is based on autotrophs। autotrophs को जैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। Energy capture initiated by the grazing animals and involves the decomposition or breaking down of the organic wastage and dead matters derived from the grazing food chain। इस प्रकार से ये दो प्रकार का आता है, और इसमें वन ट्रॉपिकल लेवल से अनदर ट्रॉपिकल लेवल में रहता है, एनर्जी का फ्लो चलता रहता है। इसको हम एक पिरामिड की तरह सकते हैं कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए पहले 1000 था, तो उसके बाद फिर 110% का इसमें एक पिरामिड बनता है इसका, इस प्रकार से। Types of biomes। In the earlier paragraphs, you have learned the meaning of the term biomes। Let us now try to identify the major biomes of the world। यहाँ पर कुछ संसार के biomes हैं। There are 5 major biomes: forest, desert, grassland। देख सकते हैं आप। Aquatic and altitudinal biomes। Some features of these biomes are in the table 15.8। टेबल भी उसमें दिखाएंगे आपको, इसमें टेबल 15.1 शायद आगे होगी, ये टेबल दी गई, इसमें देख सकते हैं आप। ट्रॉपिकल में देख सकते हैं ये कहाँ का, इसका रीजन है वो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में बच्चों। और यहाँ पर देखिए क्लाइमेटिक के जो टेम्परेचर जो पाया जाता है 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और यहाँ पर सोयल एसिडिक पाई जाती है, पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। और यहाँ किस प्रकार का फ्लोरा ऑफ फाउना पाया जाता है, मल्टी लेयर्ड क्नोपी टॉल एंड लार्ज ट्रीज पाई जाती है, क्योंकि टेम्परेचर सरासर ज़्यादा रहता है इस प्रकार से। सेकेंड इसके अंदर देख सकते हैं आप इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल, इसमें इक्वेटोरियल देख सकते हैं, इक्वेटोरियल में 8 to 10 to 25 डिग्री ही देख सकते हैं आप, नॉर्थ साउथ पा जाते हैं। और उसके फिर आगे इसने पार्ट बना दिया इक्वेटोरियल डेसिड्यूज टेम्परेट जो पा जाता है 25 to 30 डिग्री। रेनफॉल एवरेज जो है वो एनुअल रेनफॉल 1000 मिलीमीटर सीजनल। रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, लेस डेंस ट्रीज, the medium height, many varieties coexist। Insects, bats, birds and the mammals are the common species in the world। ये टेबल दी गई, इसमें देख सकते हैं आप, इसमें दिखा भी इसका कौन कौन सा है। इसमें ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप आ जाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। इसमें टेम्परेचर यहाँ पर देखिए 22-30 डिग्री सेंटीग्रेड। रेनफॉल इज डिस्ट्रीब्यूटेड 75 to 1500 मीटर्स। वेल डिफाइंड सीजन, यहाँ पर एक डिफाइंड सीजन, कभी गर्मी आती है, सर्दी आती है, इस प्रकार से। फर्टाइल एंड अनरिच्ड विद द डिकेइंग लिटर, देख सकते हैं इसमें।
बी में मॉडरेटली डेंस broad leaves trees with less diversities of the plant species, oak, beech, maple, इस प्रकार की are some common species, squirrels, rabbits, scones and birds, black bears, mountain lions, इस प्रकार की पाई जाती हैं पर। उसमें बात करते हैं, अगर सी की बात करते हैं, विथ आपका डेसिड्यूस टेम्परेचर लेवल, इसमें ब्रॉड बेल्ट ऑफ द यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ साइबेरिया, अलास्का, कनाडा एंड स्कैंडिनेविया, ये इस पाई जाती है। इसमें शॉर्ट मोस्ट मॉडरेटली वार्म समर एंड लॉन्ग कोल्ड ड्राई विंटर होता है, वेरी लो टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन मोस्टली स्नोफॉल होता है यहाँ पर, वो 400 से लेकर के 1000 मिलीमीटर्स तक होता है। एसिडिक एंड पुअर न्यूट्रिएंट्स थीन सोइल को पाई जाती है। और उसके बाद देख सकते हैं एवरग्रीन conifers like the pine, fir and the spruce etc. Woodhawks, bears, wolves, deer, hares and bats are common animals। तो ये बात है। उसके बारे में बात करते हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट में देख सकते हैं एक हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, जैसे सहारा है, काला हरी है, मरुस्थली है, रूबेल खली है। इसमें देखिए टेम्परेचर जो है वो 20 से लेकर के 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ए में। और बी में अगर सेमी एंड डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर है 21 से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार से सी है जो कोस्टल डेजर्ट है, वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो 15 to 35 डिग्री रहता है। और उसमें बी की बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट है, तो यहाँ पर 2 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें देख सकते हैं हम रिच इन द न्यूट्रिएंट्स विद द लिटल और नो ऑर्गेनिक मैटर। यहाँ पर रेनफॉल इज लेस देन 50 मिलीमीटर होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो यहाँ पर वेजिटेशन जो देख सकते हैं आप बहुत कम मिलेगा आपको, स्कैंटी वेजिटेशंस, फ्यू लार्ज मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रैबिट्स, रेट्स, एंटीलॉप्स एंड द ग्राउंड्स, इस प्रकार की जो है वो पाए जाते हैं उसमें प्रजाति। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है एक टेम्परेट स्टेट के ऊपर, लार्ज एरियाज ऑफ अफ्रीका का, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिका एंड इंडिया का भी पार्ट। इसमें देखिए जो क्लाइमेट कंडीशन वार्म हॉट क्लाइमेट, रेनफॉल जो है वो 500 से लेकर के 1250 मिलीमीटर्स है। पोर्स विद द थिन लेयर ऑफ ह्यूमस, इसमें पोर्स लेयर पाई जाती है, सॉइल की बात करते हैं। इसमें ग्रासेस पाई जाती है, ट्रीज एंड द लार्ज पाई जाती है, झाड़ियाँ पाई जाती है। सेंट द जिराफ्स, जेब्राज, ये इसमें पाई जाते हैं। इसमें जिराफ, जेब्राज, बेफेलोज, लेपर्ड, हाइनस एंड द एलिफेंट, माइस, मोल्स, स्नैक्स, इस प्रकार से ये चीज़ें इसमें पाई जाती है। Moles, snakes and worms etc. are common animals। नेक्स्ट इसमें आपका टेम्परेचर की बात करते हैं स्टेपीज की। यहाँ पर पार्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, तो यहाँ पर बच्चे देखते हैं इसमें हॉट समर एंड द कोल्ड विंटर है। यहाँ पर रेनफॉल जो है 500 से 900 मिलीमीटर्स है। और इसमें थिन क्लोक्रेटेड सोइल्स रिच इन द बेसिस, ग्रासेस है यहाँ पर, ओकेजनली ट्रीज सच एज द cottonwoods, oak and the willows or gazelles and zebras, इस प्रकार से rhinoceroses and wild horses, lions, varieties of birds, worms, snakes etc. are common animals। तो उसके बाद आता है आपका एक्वेटिक, इसमें फ्रेश वाटर, रेन वाटर, इसमें कि लेक आ जाती है फ्रेश वाटर में, रिवर्स एंड वेटलैंड्स, और दोनों में अगर ओशियंस उसकी बात करते हैं इसमें स्लोप्स ऑफ द हाई माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयज एंड एंडीज, ये इसमें अल्टीट्यूड के हिसाब से टेम्परेचर आर वेरी वाइडली विद द कूलर एयर टेम्परेचर एंड द हाई ह्यूमिडिटीज। वाटर स्विम्स एंड द मार्सेस, इसमें एगाल एंड द अदर एक्वेटिक एंड मेरीन प्लांट्स कम्युनिटीज विद द वैराइटीज ऑफ वाटर डिवेलिंग एनिमल्स। वाटर स्विम्स इन द मार्सेस, इसमें पाया जाता है वाटर टाइडल स्विम्स इन द रेगुलिथ वाटर टाइडल्स एंड स्विम्स, ये पाया जाता है इसके अंदर। उसके बाद बात करते हैं एल्टीट्यूडल की। स्लोप्स ऑफ हाई, ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो वो कम हो जाता है, उसके अनुसार फिर जो है वहाँ बाइम्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। और जैसे सब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और उसमें जो हमारी वेजिटेशन है वो भी चेंज जाती है। स्लोप ऑफ द हाई माउंटेन रेंजेस लाइक द हिमालयज, एंडीज एंड द रॉकीज, ये सारे माउंटेन है। तो यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द लैटिट्यूडनल जोन्स, उसके हिसाब से भी कितनी उसके ऊपर लैटिट्यूड कितना है और उसके बाद हाइट कितनी है। रेगुलिथ कवर स्लोप होता है डेंसिटीज से और टुंड्रा वेजिटेशन वेरिंग
ऑन टू द अल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई के अनुसार जो यहाँ पर जो वेरी करती है। तो ये इसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहे थे। ये बीच में आप कराइए जरा, यहाँ पर थे बायो जियो केमिकल साइकिल्स, किस प्रकार से होते हैं। The sun is the basic source of energy on which all life depends. This energy initiates life process in the biosphere through the photosynthesis. The main source of food and energy for the green plants during photosynthesis, carbon dioxide is converted to the organic compounds and oxygen. Out of the total solar insolation that reach the Earth's surface, only very small fraction, बहुत ही कम, 0.1%, 0.1% is fixed in the photosynthesis. More than half of the use to the plant respiration, and remaining part is the temporarily stored or shifted to the other portion of the plants. इस प्रकार से इसका use होता है। Life on Earth consists of a great variety of the living organisms. These living organisms exist and survive in a diversity of associations. इसकी एक diversity पाई जाती है। Such survival involves the presence of the systematic flows, such as the flow of energy, water, and nutrients. These flow. So the variation in the different parts of the world in different seasons of the year and under varying the local circumstances. Studies have shown that for the last 1 billion years, the atmosphere and hydrosphere have been composed of approximately the same balance of the chemical components. ऐसा अनुमान है। The balance of the केमिकल एलिमेंट्स इज मेंटेन बाय ए साइक्लिक बेसिस। जो बैलेंस है वो एक साइक्लिक केमिकल एलिमेंट्स का जो मेंटेन किया जाता है वो एक साइक्लिक बेसिस टू द टिश्यूज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। द साइकिल स्टार्ट्स बाय द एब्जॉर्बिंग द केमिकल एलिमेंट्स बाय द ऑर्गेनिजम्स एंड इज रिटर्न टू द एयर। कोई भी इस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वापस फिर एयर में रिटर्न कर देते हैं। एयर, वाटर एंड द सोइल थ्रू द डिकम्पोजिशन। एयर में जाता है, वाटर में जाता है, सोइल में जाता है। इस प्रकार से एक साइकिल बन जाता है। These cycle are largely analyzed by the solar insolation. तो सारा का सारा जो उसको एनर्जी देने काम करता है वो सोलर इंसोलेशन है, सोलर एनर्जी। This cyclic movement of the chemical elements of the biosphere between the organisms and the environment are referred to as the biogeochemical cycle. इस प्रकार से जो ये साइकिल उसको बोलते हैं बायोजियो, यानी बायो के उसमें और जियो का भी प्रोल हो गया और केमिकल्स तो है इसके अंदर केमिकल साइकिल्स। तो बायो रेफर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जियो टू रॉक, सोइल एंड द वाटर, अर्थ। So there are two types of the biogeochemical cycle, the gaseous and the sedimentary cycle. In the gaseous cycle, the main reserve of the nutrients is the atmosphere and the oceans. In the sedimentary cycle, the main reserve of the soil and the sedimentary and the other rocks of the earth crust. इस प्रकार से अगर हम वाटर साइकिल की बात करते हैं, all living organisms at atmosphere and the lithosphere maintain between them a circulation of water in solid, liquid and gases from referred to as the water or hydrogen cycles. ये पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में किस प्रकार से जो है वाटर साइकिल चलता है, यानी फिर इसके अंदर डाटा प्रोसेस होती है। एक चैप्टर आता है हमारा वाटर इन द एटमोसफियर, उसमें बताया था कि पहले सॉलिड रूप में होता है, वाटर लिक्विड में होता है, फिर गैसेस में होता है। इस प्रकार से इसकी फॉर्म से होती है और ये एक साइकिल के जरिए चलता रहता है। सेकेंड इसके अंदर आता है आपका कार्बन साइकिल। कार्बन में carbon is one of the basic elements of all living organisms. It forms the basic consistent of the all organic compounds. The biosphere contains over 500,000 carbon compounds in there. The carbon cycle is mainly the conversion of carbon dioxide. This conversion is initiated by the fixation of the carbon dioxide from the atmosphere through the photosynthesis. ये करते हैं, प्लांट्स करते हैं। सच से कन्वर्जन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। ये सारा का सारा जब करते हैं तो इसमें क्या बनता है, बच्चों कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज दैट मे बी कन्वर्टेड टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज द सुक्रोज है, जो मिठास है, स्टार्च है, सेलुलोज है, एक्सेट्रा। इस प्रकार से वो चेंज कर देता है। हियर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड डायरेक्टली बाय द प्लांट्स इटसेल्फ ड्यूरिंग द प्रोसेस। मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरेटेड एंड रिलीज्ड through its the leaves or roots during the day. Plants देखिए दिन किस में देख सकते हैं आप ही किस प्रकार से रिलीज थ्रू द लीव्स एंड रूट्स इज इट द
During the process, more carbon dioxide is generated and is released through its leaves and roots during the day. The remaining carbohydrates not being utilized by the plants became part of the plant tissues. Plant tissues are either being eaten by the herbivores, animals, or gets decomposed by the microorganisms. The herbivores convert some of the consumed carbohydrates into the carbon dioxide or release into the air through the respiration. सांस लेते हैं, बाहर निकालते हैं इस प्रकार से. The microorganisms decompose the remaining carbohydrates after the animal dies. जब वो मर जाते हैं तो उसके अंदर होता है. The carbohydrates that are decomposed by the microorganisms then get oxides into the carbon. Carbon during the photosynthesis and released in the atmosphere through the transpiration and respiration process of the plants. इस प्रकार से ये चलता रहता है इसमें. नेक्स्ट इसके अंदर है आपका ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. इसकी बात करते हैं. इसमें नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे. इसके पेज नंबर ऑक्सीजन साइकिल. Oxygen is the main byproduct of the photosynthesis. देखिए उससे बात करते हैं. ये यहाँ पर कर दूँगा, कहीं रहते नहीं है. तो इसमें टॉपिक oxygen cycle. Oxygen is the main byproduct of the photosynthesis. It is involved in the oxidation of the carbohydrates with the release of energy, carbon dioxide and water. The cycling of the oxygen is highly complex process. इसका जो process है वो काफ़ी जटिल है. Oxygen occurs in a number of the chemical forms and combinations. It combines with the nitrogen to form the nitrates and with many other minerals and elements to form the various oxides such as the iron oxide, aluminum oxide and others. Much of oxygen is produced from the decomposition of the water molecules by the sunlight during the photosynthesis and the release in the atmosphere through the transpiration and the respiration process of the plants. Next बच्चा आपका नाइट्रोजन साइकिल. Nitrogen is a major constituent of the atmosphere, comprising about the 78%. देखिए जो मेन अगर आपने पढ़ा एटमॉस्फेयर में 78% लगभग नाइट्रोजन पाई जाती है. It is also an essential constituent of the different organic compounds such as the amino acids, nucleic acids, proteins, vitamins and pigments. ये सारा का सारा जो है नाइट्रोजन. और नाइट्रोजन भी जो है वो प्लांट्स अगर कोई क्रॉप्स उगाते हैं तो वो बाई एयर से लेते हैं. Only a few types of the organisms, like the certain species of the soil bacteria and blue-green algae, are the capable utilizing of it directly into the gaseous form. Generally, nitrogen is usable only after it is fixed. And 90% of the fixed nitrogen is biological. 90% of the skin is fixed biological. The principal source of the free nitrogen is the action of the soil microorganism. तो सोयल जो होती है उसके अंदर जैसे हम उसकी जुताई करते हैं तो इस प्रकार से ज़्यादा एरेशन होता है. जितना एरेशन होगा उतना ही ज़्यादा उसके नाइट्रोजन. एंड विद द प्लांट रूट्स, जो प्लांट रूट होते हैं जैसे कुछ से इस प्रकार क्रेविस प्लांट होते हैं. ऑन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन द पोर स्पेस ऑफ द सोil. जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं उनके. नाइट्रोजन कैन ऑल्सो बी फिक्सड इन द एटमोस्फेयर बाय द लाइटिंग के द्वारा एंड कॉस्मिक रेडिएशन उसकी वजह जाती है. In the ocean, some marine animals can fix it. After atmosphere, nitrogen has been fixed into the available form. Green plants can assimilate. Herbivorous animals feeding on plants in turn consume some of it. इस प्रकार से उसकी जाती है. Dead plants in turn consume some of it. Feeding plants, so dead plants and animals, excretion of the nitrogen waste are converted into the nitrates by the action of the bacteria present in the soil. सब बैक्टीरिया जैसे बात करते हैं गोबर की खाद डालते हैं तो इस प्रकार से जो गोबर की खाद डालने से भी जो नाइट्रोजन बढ़ जाता है. डेड प्लांट्स एनिमल्स एक्सक्रीशन ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट आर कन्वर्टेड टू द नाइट्रेट्स बाय द एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सोइल. जो जैसे गोबर की खाद को ग्लास उड़ा करके हम खेत में डाल देते हैं. Some bacteria can even convert the nitrates into the nitrates that can be used again by green plants. Green plants से भी इसको डिकम्पोज करते हैं. जैसे क्रॉप्स होती है जो दाल वाली फसल होती है उनको उसमें हम खेतों में प्लॉइंग कर देते हैं, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उससे फिर नाइट्रोजन बन जाती है.
There are still other types of the bacteria capable of the converting nitrates into the free nitrogen, a process known as the denitrification. इसका एक एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर देखिए दे सकते हैं। देखिए एटमोस्फेयर नाइट्रोजन होता है किस प्रकार से एटमोस्फेयर फिक्सेशन करता है यहाँ पर इसमें, और ये नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं इस प्रकार से तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर देते हैं और यहाँ से इंडस्ट्रियल फिक्सेशन कर देता है, उसके बाद फिर ये डेंट्रिफिकेशन ये जाता है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, ये वापस फिर जो इस प्रकार से इसका एक साइकिल बन जाता है। ये तो बच्चा आपका नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है। उसके बात करते हैं अदर मिनरल साइकिल। अदर देन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द हाइड्रोजन बीइंग the principal geochemical components of the biosphere, many other minerals also occur as the critical nutrients for the plants and animals. These mineral elements required by the living organisms are obtained initially from the organic sources such as the phosphorus, sulfur, calcium and the potassium. They usually occur as the salt dissolves in the soil water. इस प्रकार से करते इसके अंदर डिजोल्व कर देते हैं। These mineral elements required by the living organism and obtained initially from the organic sources as the phosphorus, sulfur, calcium and potassium. They usually occur as the salt dissolved in the soil water or lakes, streams and seas. Mineral salts come directly from the earth crust by the weathering के द्वारा मिनरल वेदरिंग होती है तो रॉक्स को आ जाती है। Where the soluble salts enter the water cycle. Eventually, reaching the sea, the other salts are returned to the earth surface through the sedimentation के द्वारा हो जाता है, and after the weathering, they again enter the cycles. All living organisms fulfill the mineral requirement from the mineral solutions in their environment. Other animals receive their minerals needs from the plants and animals separately. They consume after the death of the living organisms. The minerals are returned to the soil and water through its the decomposition and flow. इस प्रकार से चलता रहता है। ये तो आपका ये, उसके बाद आपका इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करते हैं। इकोलॉजिकल बैलेंस इज ए स्टेट ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए डायनेमिक जो डे बाई डे जो चेंज होता है, डायनेमिक होता है, चेंज इसमें आता है विद इन ए कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन हैबिटेट। और देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, तो उसमें अगर आजकल जैसे पराली जलने से ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो एक इम्बैलेंस हो जाता है। इट कैन हैपन व्हेन द डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिमेन रिलेटिवली स्टेबल। जैसे कई बार हम देखते हैं हमारे कुछ स्पीसीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। Gradual change do take the place, but that happens only through the natural succession. It can also be explained as a stable balance in the number of the species in an ecosystem. This occurs through the competition and the cooperation between the different organisms where the population remains stable. This balance is brought about by the fact that certain species compete with the other others, determined by the environment in which they grow. This balance is also attained by the fact that some of species depend on the other for their food and the sustenance. कई बार जैसे बात करते भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो प्रे एनिमल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे तो किस प्रकार सर्वाइव करें, उनका जो हैबिटेट है, क्योंकि इंसान ने जो है जंगलों को काट दिया, जो फॉरेस्ट हैं उसको क्लियर कर दिया, वहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, मकान बना लिए, इस प्रकार से उनका जो आवास है, और हम बात करते हैं तो वो खत्म होगा, आवास खत्म हो, फिर रहेंगे क्या? Such accounts are encountered in the vast grassland where the herbivores, animals, deer, zebras, buffaloes, etc. are found in plenty. On the other hand, the carnivorous animals, tigers, lions, and carnivorous animals, tigers, lions, etc., that are not usually in large numbers, hunt and feed on the herbivores, thereby controlling their population. In the plants, by the disturbance in the native forest, such as the clearing the forest for shifting cultivation, usually they bring about a change in the species distribution. This change is due to the competition, where the secondary forest species such as the grasses, bamboos or the pines overtake the native species, changing the original forest structure. This is called the succession. जो है वो हमने फॉरेस्ट को काट के अपने जो इस प्रकार के जो कमर्शियल फॉरेस्ट है वो लगाना शुरू कर दिया, वो भी होता है। इकोलॉजिकल बैलेंस में भी डिस्टर्ब इज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू स्पीसीज, नेचुरल हैजार्ड्स ऑफ द ह्यूमन cause the human interference has affected the balance of the plant communities, leading to the disturbance in ecosystem.
Such disturbance bring about the numerous secondary succession. Human pressure on the earth resource has put a heavy toll on the ecosystem. This has destroyed the originally and has caused the adverse effect to the general environment. Ecological imbalances have brought many natural calamities like the इसके कारण फिर एक imbalance हो जाता है और फिर कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे बात करते हैं कहीं फ्लड आती है कहीं पर लैंडस्लाइडिंग हो जाता है डिजीज हो जाती है एरेटिक क्लाइमेटिक अकोरेंस हो जाता है कहीं पर फ्लड आती है तूफान आता है इस प्रकार की प्रॉब्लम जो है फिर आती है. So there is a very close relationship between the plant and animal communities within particular habitats. उनके बीच में जो एक particular habitat होता है एक relationship होता है. अगर relation टूट जाता है तो फिर ecological imbalance हो जाता है. Diversity of life in a particular area can be employed as an indicator of the habitat factors. Proper knowledge and the understanding of such factors provide a strong base for the protecting and conserving the ecosystem. अगर हमारे इसको नॉलेज होता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है तो उसको हम सुधारें तभी जा करके हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा. अदरवाइज इकोलॉजिकल बैलेंस हो जाएगा और उससे फिर जो चीज़ें हैं वो खराब हो जाएगी. इसकी एक्सरसाइज भी ये बच्चे कर सकते हैं. आपका एक लास्ट चैप्टर रहता है इसके वो करेंगे इसके बारे में. कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. आई थिंक बहुत सिंपल चैप्टर है ये बायोलॉजी का चैप्टर है. बायोलॉजी साइंस में आपने पढ़ा होगा. इसमें बस ये थोड़ा सा ये जो मैंने आपको दिखा ये टेबल है इस टेबल को जो डायग्राम है इनको ध्यान से चलो इसी के साथ आपका कार्यक्रम समाप्त होता है.